آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ڈاؤن نیوز۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں بہاول نگر۔ محمد جنید کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر میں کامرس کالج کے اندر ایک لیکچر کا آغاز کیا گیا، جس کا عنوان تھا کہ آخر فلسطین مسجد اقصی تمام مذاہبوں کے لیے کیوں ضروری ہے، جس کے شرکاء نے تفصیلی گفتگو کی۔ عوام الناس کو تفصیل سے بتایا گیا، جس میں کثیر تعداد میں خواتین، بزرگ اور بچے نوجوانوں نے شرکت کی۔ اس میں مذہبی جماعتیں، سول سوسائٹی کے لوگوں نے شرکت کی۔ جی، آج ہم موجود تھے بہاول نگر کامرس کالج کے اندر، جہاں پر ایک جماعت اسلامی کی جانب سے، سول سوسائٹی کی جانب سے اور دیگر مذہبی جماعتوں کی جانب سے ایک لیکچر کا آغاز کیا گیا، جس میں فلسطین کے حوالے سے خصوصی بات کی گئی، جس میں کثیر تعداد میں خواتین نے شرکت کی اور عوام الناس نے شرکت کی اور بڑا تفصیل سے اس لیکچر کو سمجھا، اور اس میں یہی آیا کہ فلسطین ہمارا دل ہے اور فلسطین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور اسرائیل کی پروڈکٹوں کا ہم انشاءاللہ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ جتنے بھی ان کے پروڈکٹ ہیں ان کا بائیکاٹ ہوگا اور بڑی سطح کے اوپر ہوگا۔ حیثیت ایک سٹیزن، ایک شہری کے یہ چاہتا ہوں کہ تمام پاکستانی اس نظریے کو سمجھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں اور ان کو پتہ چلے کہ موجودہ دور کے اندر ان کا کیا کام ہے اور نیکسٹ سٹیپ میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، پاکستانی شہریوں کو کیا کرنا چاہیے فلسطینی بھائیوں کے لیے، اور اسرائیل کے اس ایجنڈے کو پاکستان ہمیشہ سے کنڈیم کرتا آیا ہے، اس کا مخالف رہا ہے، اور ہم اسرائیل کو کبھی کسی صورت بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ہمارے نوجوان اور نوجوان خون اس کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا، یہ ہمارا عزم ہے اور انشاءاللہ ہم اس پر قائم رہیں گے۔ سب سے پہلے بہاول نگر کی خواتین کے لیے اسپیشلی میرے پاس ایک میسیج یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کے ساتھ جڑیں۔ ہم جب ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے تو ہماری آگے خواتین کے لیے آسانی ہوگی اپنی نسلوں کو تیار کرنے میں۔ مل کر آئیں، سب مل کر ایک بہاول نگر کی ایسی گیدرنگ کریٹ کرتے ہیں جس میں آگے بڑھتے ہوئے ہم ایک ایسی نسل پروان چڑھائیں جو کل کو یہود و نصارہ کے سامنے ایک ایسی سیسہ پلائی دیوار بن کے کھڑی ہو، جو نہ ہماری امت مسلمہ کے خلاف کچھ کر سکے، نہ ہمارے اسلام مذہب کے خلاف کوئی اقدام کر سکے، اور نہ ہی کسی بھی حوالے سے معاشی طریقے سے ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ ہمیں ایسے تیاری کرنی پڑے گی۔ دیکھیں، میری ایک بات یاد رکھیں، بائیکاٹ کو لوگ بہت ایزی لیتے ہیں، نہیں، بائیکاٹ سے آپ اس معاشی جو جائنٹ ہے اسرائیل، ایسا اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کی جو بنیادیں اس کو کھوکھلا کر سکتے ہیں جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کے اپنے ملک پاکستان کو ہے۔ آپ کا بڑا جو زیادہ تر ڈالرز ہیں اس کا حصہ جاتا ہے باہر سے، جو آپ چیزیں اپنے ملک میں امپورٹ کرتے ہیں، اس کے اندر جو را میٹیریل یہ کمپنیز یہودی اسرائیلی آپ کے ملک میں لے کے آتی ہیں، اس کے بدلے آپ کے ملک سے ڈالر، جو کہ ڈالر میں ٹریڈ ہو رہی ہے، وہ آپ کے ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، آپ کا پیسہ ہوتا ہے ڈی ویلیو، آپ کے اپنے جائیداد، مال، اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کو ایک جو آپ کے حکمران ہیں وہ ایک آپ کو لالی پاپ دیتے ہیں کہ جی پیسہ جب کم ہوتا ہے اس کی ویلیو ڈی ویلیو ہوتی ہے، تو آپ کو الٹیمیٹلی فائدہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو الٹیمیٹلی فائدہ تب ہوگا جب آپ اپنے پاکستان کے بنے ہوئے برانڈز استعمال کریں گے اور اپنے ذہن کے اندر لے آئیں گے کہ پاکستانی پروڈکٹ فرسٹ ہماری پرائیورٹی ہو، یہود و نصارہ کے پروڈکٹس کو ٹوٹلی ہم کک آؤٹ کریں۔ اس حوالے سے میں ایک اور آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ ریسنٹلی بہاول نگر بار کا یہ اعزاز ہے پورے پاکستان بارز کو زندہ کرنے میں۔ اپنی کنٹینز کے اندر بہاول نگر بار نے جیسے ہی تمام یہودی اسرائیلی پروڈکٹس کو بین کیا، لاہور بار نے بھی کیا، بہاولپور بار نے بھی کیا، ہم نے میسیجز کیے اپنے دیگر پنجاب کے دوستوں کو، یار یہ کرواؤ، اور الحمدللہ اب تک 20 سے 25 بارز اپنے احاطے عدالت کے اندر اسرائیلی یہودی پروڈکٹس کو ٹوٹلی بائیکاٹ کر چکے ہیں، بین کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے وہ بھی یہ قدم لے، پنجاب بار کونسل، کیونکہ لاہور بار نے تو کر دیا ہے، پنجاب بار بھی لے، سندھ بار لے، باقی ساری دیگر بار بھی یہ قدم لے۔
ये कदम लेंगे तो दूसरों को भी हिम्मत ताकत मिलेगी कि हाँ ऐसा हो सकता है, और ये होना ज़रूरी भी है। सब मिलकर मुत्तहिद होकर इस जो अब उम्मत के ऊपर एक आफत है यहूदी, उसको दूर कर सकें, तो उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा। ऐ सब मिलकर ये कदम लें। इस हवाले से आगे काशिफ भाई भी कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये काविश जो कि हमने तकरीबन 4 से 5 माह से शुरू की हुई है, उसमें आज हमने एक सेशन का इनेकाद किया था ताकि हम लोगों तक ये ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज स्प्रेड कर सकें कि अल्लाह ताला ने हमें जो इस्तिताअत दी है, हम उस इस्तिताअत के मुताबिक अपना काम जारी रखेंगे और हम वो मुसलमान बनेंगे जो कि उस किरदार में ना हो कि वो घर में बैठे हों। हम स्पेक्टेटर्स नहीं हैं। जब हम स्पेक्टेटर्स बनते हैं तो ये सारे हालात हमसे वाबस्ता होते हैं। जब हम अपनी काविशें और अपनी आवाज़ कम अज़ कम बुलंद करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका इम्पेक्ट पूरी दुनिया में आप देखेंगे। और अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना है तो हम इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें इसके ऊपर कारबंद भी रखे और इस्तकामत अता करे। आप लोगों से ये गुजारिश है कि कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम बॉयकॉट करें, इसराइली तमाम प्रोडक्ट्स को अपने घर से किक आउट करें और उनको इस्तेमाल करने से गुरेज करें, और पाकिस्तानी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रायोरिटी दें और अपने घरों में उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। जज़ाकल्लाह। इसराइल मुर्दाबाद, फ़लस्तीन जिंदाबाद। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ख़वातीन मर्दों से दुगनी तिगनी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं। जज्बा मौजूद है, हमें सिर्फ़ एक गाइडलाइन चाहिए कि हमने क्या करना है। साइमा बहन ने बताया कि हमें अपनी नस्लें तैयार करनी है। यहूदी खैबर को नहीं भूले, हम हर चीज़ को भूल गए। हमें उन्होंने सिर्फ दुनियादारी और ऐश परस्ती पे लगा दिया और हम अपने उस मिशन को भूल गए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और आपके सुपुर्द किया था। हम यहूदियों के साथ, उनकी प्रोडक्ट के साथ इस कदर यूज़ टू हो गए, उनके बगैर रहने का तसव्वुर नहीं है। हमारे बच्चे फ़लस्तीन में गाजर मूली की तरह ज़िबा हो रहे हैं। रोज़ हज़ारों शहादतें हो रही हैं, वो मेरे और आपके बच्चे हैं। जब वो माएँ इतने कामिल ईमान के साथ वहाँ खड़ी होंगी तो यहाँ की माएँ कहाँ खड़ी होंगी? हमारे पास क्या जस्टिफिकेशन होगी अल्लाह को दिखाने के लिए? हमने उनका साथ क्यों नहीं दिया? हम क्यों उनकी शहादतों का, उनकी नस्लों के ख़त्म होने का इंतज़ार करते रहे? हम जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, हम जहाँ हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, क्योंकि हमसे हमारी कोशिशें पूछी जाएंगी। हमसे हमारा रिज़ल्ट नहीं पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया तो क्या अंजाम हुआ। हमारी कोशिशें देखी जाएंगी। हम अपनी दुआओं में भी उनको शरीक रखें, हम उनकी प्रोडक्ट्स का मुकम्मल बाइकआउट करें। तो हमारे किसी घर में उनकी कोई प्रोडक्ट नहीं आनी चाहिए। साइमा बहन ने कहा हम उसी दौरे जाहिलियत में हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। इस्लाम इतने ज़ोफ़ और कमज़ोर की हालत में कभी नहीं था जितना आज है, और आज इस्लाम को मेरी और आपकी उतनी ही ज़रूरत है जैसे हज़रत खदीजा की ज़रूरत थी। हज़रत खदीजा भी एक ख़ातून थी, पहली शहादत भी हज़रत सुमैया की थी, वो भी एक ख़ातून थी। तो इस्लाम को ख़वातीन से जो फ़ायदा और ताकत और तक़वियत पहुँची, उसमें हमारा भी हिस्सा हो। हम भी फ़लस्तीन की माँओं की तरह पुरअज़्म भी हों और ईमान में भी कामिल हों। उनका तो बच्चा तवक्कल अल्लाह करता है, अल्लाह अकबर करता है, जनाजे हाथों में है, अल्लाह पर भरोसा है। मैं और आप भी इसी कामिल यकीन के साथ उनकी मदद के लिए खड़े हो जाएं। अपने घर बार हमारे कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा थोड़ा सा वक्त, उनकी हौसला अफजाई, और वो समझेंगे कि हमारे पाकिस्तान के मुसलमान भाई हमारे साथ हैं। हमारी हुकूमतें 57 इस्लामी मुल्क जिनकी तिनके जितनी औकात भी नहीं है, इस कदर सोए हुए हैं, बेहया और बेगैरत हो चुके हैं। और हम माएँ अगर उठेंगी तो इंशाल्लाह इनकलाब आएगा। माँओं ने नस्लों की तरबियत करनी है और हम इसमें अपनी कोशिशें ज़रूर करेंगे ताकि अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो, और जब अपने रब से मिलें तो उसको दिखाने के लिए हमारे पास कुछ हो, वो हमसे राज़ी हो और हम उससे राज़ी हो जाए। इसराइल की प्रोडक्ट से बाइकआउट करें और अपने बच्चों को इस्लामिक तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उनकी तरबियत इस तरह से करें। हमारा मकसद सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा करके इस्लाम के मुताबिक चलना है और यकजहती के तौर पे
हम लोग इकट्ठे होके इसराइल के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। या इक़ातुना लब्बैक अल-क़ुद्स लना लब्बैक, ए अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन, तुम्हारे खौफ से लरज़े दरो दीवार ज़ुल्मत के, तुम्हारे नूर से चमके गुलो गुलजार उदत के, तुम्हारी हैबतों से ही तो कांपे के सुरो किसरा, तुम्हारी जुर्रतों से अल-क़ुद्स तकबीर से गूंजा। लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल-क़ुद्स लना लब्बैक, ए अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन, लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल-क़ुद्स लना लब्बैक, ए अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन, जनाबे उम्र की ललकार बनना है, सलाहुद्दीन की गोया तुम्हें तलवार बनना है, तुम्हें उस्मानी सल्तनत का एक शाहकार बनना है, तुम्हें लश्कर से उठना है, सिपा सालार बनना है। लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल-क़ुद्स लना लब्बैक, ए अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन, लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल-क़ुद्स लना लब्बैक, ए अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। हो रही है कि ये उम्मत के नौजवान, चंद नौजवान, आपको पता है असहाबे कहफ का वाक़या आप लोग सुन चुके हैं कुरान हकीम में, और ये चंद नौजवान जो इस वक्त निकले हैं, और आप अपने आप को समझिए, मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, सिर्फ मैंने 3 मिनट आपके लेने, आप सब के। आप समझें कि आप इस वक्त मक्का के जोहल के दौर में हैं, मक्का के दौरे जाहलियत में आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप उस दौर को पसंद करना चाहेंगे जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मुसलमान की ज़रूरत थी, या उस दौर को पसंद करना चाहेंगे जब इस्लाम पूरी दुनिया में फैल चुका था? बताइए, मुझे इसका जवाब दीजिए। आप किस वक्त को पसंद करना चाहेंगे? आप सुन रहे हैं? आप किस दौर को पसंद करना चाहेंगे जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर सिद्दीक, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ईमान लाए, उसामा बिन ज़ैद ईमान लाए, उस वक़्त को पसंद करना चाहेंगे, या उस दौर को कि जब पूरे आलम इस्लाम ने इस्लाम की किरणें फैल चुकी थी? बताइए किस दौर को पसंद कर? पहले दौर को। तो फिर आप समझें कि आप मक्का के जोहल के दौर में हैं इस वक्त। आप अपने आप को बिल्कुल भी तन्हा ना समझें, आप फर्स्ट स्टेप लें और आप समझें कि हम उस वक़्त के दौर में हैं जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मुसलमान मोमिन की, ईमान वाले की ज़रूरत थी। आप पहला कदम बढ़ाइए। आप अपने घर में एक भी है ना बिलफ़र्ज़, तो आप निकल आएँ, आप निकलें पर्दे में, अल्लाह की हुदूद को बरकरार रखते हुए निकलें। अपने बच्चों को उनकी तरबियत इस तरह से करें कि 100 साल की प्लानिंग करें, 100 साल की प्लानिंग करें। ये नहीं आपने करना कि आपने अपने बच्चे को जस्ट डॉक्टर बनाना है, वकील बनाना है और पैसा कमाने की मशीन बनाना है। नो, आपने 100 साल की प्लानिंग करनी है और उस प्लानिंग के साथ वो आगे प्लानिंग करे। वल्लाहुल इल्म कितना वक़्त है हमारे पास, हमें नहीं मालूम कि दज्जाल का ज़हूर किस टाइम पे हो जाए, और आपको पता है कि इस वक्त पता भी नहीं चलेगा जब दज्जाल का ज़हूर होगा। मतलब मेरा ये कहने का है कि इस तरह से प्लानिंग करें अपने बच्चों की तरबियत। सबसे मैं मदद से ख़ास तौर पे मुखातिब हूँ कि अगर 3 हक़ आपके हैं, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कितना हक़ है, तो पूछा माँ का, फिर माँ का, फिर माँ का, फिर बाप का। इसी तरह आप पर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है ख़ातीन पे। तो आप लोग अपने बच्चों की इस तरह से प्लानिंग करें कि कल को दज्जाल के सामने जब खड़ा होना पड़े और दज्जाल के जब एक हाथ में जन्नत और एक हाथ में दोज़ख हो, तो वो दज्जाल की दोज़ख को प्रेफरेंस दे। अगर आज हम अपने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़
नहीं कर रहे, एरियल नहीं छोड़ रहे, एक्सेल नहीं छोड़ रहे, लिप्टन नहीं छोड़ रहे, कोक नहीं छोड़ रहे, पेप्सी नहीं छोड़ रहे, लेज नहीं छोड़ रहे, हम इन पे क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो फिर आप ये बताइए कि जिस वक्त सख्त भूख होगी और उसके पास रोटियों के पहाड़ होंगे, तो आप जो हमारी नस्लें हैं, जो हमारे नक्शे कदम पे अब चलेंगी, जो कुछ हम करेंगे, मुझे ये बताइए, मेरा ये सवाल है कि उस वक्त आप कैसे बच सकेंगे उससे। इस बात को ज़रूर गौर कीजिएगा कि हमने दज्जाल तक की प्लानिंग करनी है अपने बच्चों की तरबियत में। जज़ाकुमुल्लाह खैर। कैमरामैन हाफिज़ ज़हीर के साथ मोहम्मद जुनैद, क्राइम टाइम न्यूज़, बहावलनगर।